فرقہ پرستی بڑھ رہی ہے، پھر سے نیا دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ 74 مسلم ارکان اسمبلی تھے، لیکن ان فرقہ پرستوں نے اپنے اتحاد کے ذریعے وہ اسمبلیوں میں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مسلمانوں کو زیادہ، ملک کی آزادی کے 70 سال کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، ان 70 سالوں میں ہمیں کیا ملا؟ ہمیں ایک منظم طریقے سے ہمیں پسماندہ کر دی، اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے 70 سال کے آزاد ہندوستان میں مسلم قیادت کو منتخب نہیں کر سکا۔ یہ 70 سالہ آزاد ہندوستان کی مسلمانوں کی بدبختی ہے۔ ہم نے مرکزی لیول پر تو آج اسی لیے شریعت میں بھی مداخلت ہوتی ہے، اور جو ہم پر مختلف انداز سے ظلم و ستم ہوتے ہیں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کی بورڈ کو پھر سے ری آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے ہندوستان میں، اور یہ ہماری ریاست میں 1 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اور عبدالرحیم قریشی صاحب سیکریٹری جنرل تھے مسلم پرسنل لا بورڈ کے، لیکن ان کے انتقال کے بعد سے آج تک کسی کو منتخب نہیں کیا گیا۔ اور میں تو اس اجلاس سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ مسلمانوں کا متفقہ اور انڈسپیوٹڈ فورم ہے، اور تحریک مسلم شبان کا یہ اسٹینڈ رہا ہے کہ شریعت کے معاملے میں ہم پرسنل لا بورڈ کی مکمل حمایت کرتے ہیں، اور پرسنل لا بورڈ کی کسی قسم کی کوئی مخالفت ہم نہیں کرتے۔ یہ شبان کا اسٹینڈ رہا ہے، اور یہ حمایت شریعت کے تحفظ کے لیے، اگر کہیں کوئی کمی بیشی ہوگی تو ہم اپنے دیوان خانے میں بیٹھ کر یا پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کے سامنے بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ اس کو عوامی بحث کا موضوع نہیں بنانا چاہیے۔ اور جہاں تک کہ اراکین پرسنل لا بورڈ کا تعلق ہے، بورڈ چلے یہ بہت بہتر بات ہے، کوئی رکن رہے اس میں یا کوئی رکن نہ رہے، اس سے کوئی صحت سے فرق نہیں پڑتا۔ پرسنل لا بورڈ کی رکنیت کوئی غلام محمد کا تمغہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خدمت سب کا سمجھیے کہ بورڈ ہے، اس میں جو صاحب کام کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجیے، اگر کوئی بات غلط ہوتی ہے تو پھر اس پر بیٹھ کر بات ہونی چاہیے، عام اجلاسوں میں اس پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے میں سخت اختلاف رکھتا ہوں۔ پرسنل لا بورڈ کی ہم مکمل تحریک مسلم شبان حمایت کرتی ہے، اور رحیم قریشی صاحب کے بعد ان کی اپنی جماعت کے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، اور وہ کس کو شامل کریں کس کو شامل نہ کریں اس سے مشتاق ملک کو کوئی بحث بھی نہیں ہے۔ مشتاق ملک کو بحث یہ ہے کہ شریعت کا تحفظ اس سرزمین پر کیسے کیا جائے، اس سے ہٹ کر کوئی فورم میں رہے یا نہ رہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اب گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت مولانا صادق محی الدین فہیم، مفتی صادق محی الدین فہیم صاحب، جو سمجھیے کہ شہر کے ایک بزرگ مفتی ہیں اور باوقار سمجھیے کہ آپ کی شخصیت رہی ہے، اور شرعی فیصلہ بورڈ کی قرارداد کی منظوری کے بعد مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے علم سے نوازیں۔ صدر نشین اجلاس، معزز مفتیان کرام و مشائخ اعظام اور معزز وکلاء اور معزز حاضرین و سامعین، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ مسلم شبان کے زیر اہتمام یہ اجلاس آج یہاں منعقد ہوا ہے، اور ایک خیر کے کام کے لیے یہ اجتماع ہے۔ اس خیر کے اجتماع کو خیر ہی کے راستے پر چلنے دینا چاہیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کہ جہاں سے کوئی شر کا راستہ کھلتا ہو۔ معزز حاضرین، اس وقت سب سے اہم ترین مسئلہ دختران ملت اسلامیہ کا ہے کہ ان کو مظالم سے
कैसे छुटकारा दिलाया जाए। बुनियादी बात तो यही है कि हमारे मुआशरे से दीन व ईमान के तकाज़े बतदरीज रुख़्सत हैं। यही वजह है कि मज़ालिम का सिलसिला थमने नहीं पा रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा भी नहीं है कि इसमें लड़कियां कसूरवार नहीं हैं, कुछ दर्जे में उनका भी कसूर है, लड़की वालों का भी है और लड़की का भी है। इस तनाजुर में जो कोशिशें हिंदुस्तान भर में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के ज़िम्मेदारों की तरफ से हो रही हैं, वो भी काबिल तहसीन है। परेशान के बीच में फैसला करे। ये काम उस्ताद मलिक साहब ने बहुत अच्छा किया। अभी आपने कई मुतबर बुजुर्गों को, कारीगरों को, उलमा और दानिशों को सुना। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड एक बहुत काबिल एहतराम इदारा है, वो अपना काम कर रहा है, हम सब उससे मुतफिक हैं। आपने देखा कि जब अदालत में तलाक सलासा का मसला आया तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की आवाज़ पर मुल्क भर के मुसलमानों ने लब्बैक कहा और हुकूमत ने उस चलते हुए केसेस में थोड़ी सुस्ती और कम दिलचस्पी आई। लेकिन अब हालात कुछ और हो गए हैं। तो बहरहाल इसमें हमको ये सोचना है कि जहाँ दीन की तरबियत होती है, चाहे औरत हो या मर्द हो, दीनदार है तो मैंने समझता कि उनमें झगड़ा होता है। अगर दोनों में एक दीनदार भी हो तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। बदनसीबी ये है कि दीन से जो लोग नावाकिफ हैं और नाहिल हैं, उनकी मजहबी तरबियत नहीं है, वही डोर अदालत में जा रहे हैं। कोई अच्छे घराने की तरबियत याफ्ता लड़की हो या उसका शौहर हो जो दीन से वाकिफ हो, इस्लामी क़वानीन को जानता हो, तो वो आपस में झगड़ा नहीं करता। अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पेश नज़र रखा जाए तो किस तरह औरतों का मर्तबा बढ़ाया गया कि मर्तबा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ तशरीफ़ फरमा है। आपने कद्दू चाप के डाला, बस सभा के हुज़ूर ने चटनी में अंदर में डाल दिया। बीबी आयशा ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं और मेरे माँ बाप आपको सफ़रदान इस कनीज़ के भी आपको मुँह में डालूं। तो कहा कि आयशा तो नहीं जानती, तुम्हारी तबीब में जो है कुछ और ही लज्जत थी। तो मकसद ये था कि आप तसव्वुर कर सकते हैं किसी से कुरान की शादी का। तो आज भी हम अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को अपने हिस्सा नहीं देते जायदाद में। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो शरीयत के मसले को न माने उसका ईमान ही खतरे में पड़ जाता है। उसकी वजह ये है कि एक बार एक यहूदी और एक मुसलमान हुजूर अकरम के पास तशरीफ ले गए और मुकदमा पेश किया। हुजूर अकरम ने यहूदी के हक में फैसला किया तो उसने कहा कि बाहर निकल के कहा कि नहीं, मैं इस फैसले को नहीं मानता, चलो। तो अभी हजरत उमर के पास गए। जब हजरत उमर ने उनसे पूछा कि फैसले को नहीं मानता, किसका फैसला था, तो उसने कहा सरकार का फैसला था। तो उन्होंने फौरी उसकी गर्दन निकाल दी। यानी मतलब ये कि आप उन लोगों को बताना चाहिए कि शरीयत से आप निकल जाते हैं जब किसी शरीयत की बात को नहीं मानते। आज हैरत, मुझे ताजुब होता है कि जब मैं ह्यूमन राइट्स में था तो महीने में 5 से गैर मुस्लिम लड़कियाँ तामीर मिल्लत में जाकर मुसलमान होकर बुर्खा पहनकर आते थे और उसी तरीके से 5-6 मुसलमान लड़कियाँ वहाँ सुल्तान बाजार में क्या कहते हैं, वहाँ जाए मंदिर में आई होकर बटू लगा कर आते थे और कहते थे कि माँ बाप से बचाओ। तो आज हमारी हालत ये है कि वालिदैन को भी फुर्सत नहीं है, हमेशा टीवी में और मोबाइल में मशगूल रहते हैं। उनका भी हक बनता है कि वो अपने बच्चों को समझाएं, दीन की तमीज़ दें, शरीयत पे अमल करें। इसके लिए हम सब का काम है कि हफ्ते में कम से कम एक दिन वक्त निकाल कर मोहल्ले मोहल्ले जाएं, खुसूस से स्लम एरियाज में जाएं और जाके उन लोगों को समझाएं कि दीन क्या है। खुतबात में भी ये बताया जाए कि दीन क्या है और उसके बाद ही जो है लोग जब दीन की अहमियत को समझेंगे। और ये भी बताया जाए कि 1 तलाक में भी वही मसला हल होता है जो 3 तलाक होता है। तो ये भी उनको समझाया जाए और कहा जाए कि तलाक सबसे नापसंदीदा चीज़ है। इन तमाम चीज़ों के लिए हम सबको मेहनत करने की जरूरत है। सिर्फ जलसे में आने से कुछ नहीं होता, जब तक कि हमेशा मेहनत न करते रहें और इसकी तरफ जुस्तजू न करें।
किसी की गाली, किसी के गुस्से की परवाह नहीं करता। और या तो मेरे को अल्लाह की तरफ से एक मौका मिल जाए तो बेबाक खायद के सामने बैठा हुआ है, क्योंकि मुश्ताक अली साहब की बेबाकी शहर रियाद में मशहूर है। तो वो रियाद का फायदा उठाते हुए मैं अपने दिल के जज्बात चंद लफ्जों में आपके सामने पेश करता हूँ। हर अमल तो इंतहा जरूरी है, मगर सबसे पहले हमको उस हदीस पे अमल करना चाहिए जो हर हदीस की इब्तिदा है कि अमल का दारोमदार नीयत पर है। हर हदीस की किताब की पहली हदीस है कि अमल का दारोमदार नीयत पर है। तो अगर नीयत में इखलास होगा तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तारीफ आपके साथ होगी। और मेरे मुफ्तियान किराम जो बेइंतहा मुफीद मशवरे और बड़ी आलिमाना बातें करे, उसके आगे मज़ीद कुछ तशरीह की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं उनकी कुछ बात को अपनी तकरीर के लिए मिसाल बनाते हुए, जैसे मुफ्ती साबिक़ नबी साहब क़िबला फरमाया कि नफ्स खुदा की कसम, आज हमारी कौम की बदहाली की जिम्मेदारी हमारी नफ्स परस्ती है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं इस्लामी मदारिस बोर्ड का सदर हूँ, रोजाना हफ़ाज़ उलमा के साथ मेरी उद्योग होती है, मगर मैं देख के मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जब एक आलिम दीन आता है तो रिजल्ट करने में आप लोग कोताही महसूस करते हैं, और एक जब उनमें और एक लीडर आ जाता है तो तमाम के तमाम उसके साथ फोटो खिंचाने के लिए अपनी। इसमें उलमा और मुफ्ती हजरात से ज्यादा काम ये है कि उसमें अपने फैसले करवाने वाले लोगों को जोड़ा जाए। अब जितने प्रेजेंट हमारे पास महकूम शरइया है, अमारत शरइया है, तो वो निज़ाम मौजूद है, मगर उसमें आने वाले लोग कम हैं। अभी हमारे मुफ्ती इनामुल हक साहब यहाँ बैठे हुए थे, वो अपना इदारा कायम करके बैठे हैं, कोई शाज़ो नादिर एक आध केस आ जाता है। तो हैदराबाद में उलमा भी है, काजी भी है, फुक़हा भी है, लेकिन अगर कम है तो फैसला करवाने वाले। कभी जो बात लंबी आपने सुनी वही बात समझिए हमारे लिए ज़रूरी है। मेरी तजवीज़ भी यही है तमाम अफराद से इनफरादी तौर पर कि अपने अपने इलाकों में इस बात की हम कोशिश करें कि हमारे अवाम में, हमारे पर्सनलाज में जो आइली मसाइल हैं, तलाक, रज़ात, विरासत, इन मसाइल में वो कोर्ट में जाने की बजाय दारुल क़ज़ा से रुजू हो, जहाँ पर शरई तौर पर फैसले हो। इस बात की तरफ आवाम के अगर रुझान को हम पैदा कर दे तो इंशाअल्लाह ये उम्मत के हक़ में बड़ा ही मुफीद मुमिद मुआविन साबित होगा। ये की तजवीज़ थी। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दानिशवारान भी है, उलमा बोर्ड को जब तक आप से नहीं करेंगे और उलमा को जब तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और गुजर जितने खवालिद में हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में समन्वित नहीं करेंगे तो आज जो हमारे कराने रिवायत के तौर पर एक तरफ का इल्म हासिल किए हुए हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से वाकिफ नहीं है, तो इसके ऊपर फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। तो उलमा की भी जरूरत है, उलमा की जरूरत। ये तजवीज़ के साथ मैं इसको आपके हवाले करता हूँ। तजावीज़ भी सुन रहा हूँ, मैं पूरी तरह इससे मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन एक छोटी सी बात अर्ज करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँगा कि कुछ बरसों पहले मुझे हज को जाने का मौका मिला। वहाँ पर मैंने कुछ गैर मुस्लिमों को, ख़ास तौर पर ख़वातीन को वहाँ के जिद्दा में देखा था कि वो लोग नक़ाब पहनती हैं और बिल्कुल मुसलमान औरतों की तरह बाजार में घूम रही थी। और एक तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उनमें से एक मर्द से पूछा कि आप लोग ये क्यों पहनते हैं इसका? तो बोले साहब यहाँ का ये कानून है, इसकी हमको पाबंदी करनी पड़ती है। हमें सिखाया जाता है कि जब भी आप सऊदी जाएं या मुस्लिम ममालिक में जाएं तो नक़ाब जरूर पहने या स्कार्फ जरूर बांधें। तो जब वो वहाँ आती हैं तो उस कानून की पाबंदी करती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कानून अल्लाह ताला ने शरीयत के रूप में हमको दिया है, तो क्या हम सबको उसकी पाबंदी नहीं करनी चाहिए? अगर हम शरीयत की
पाबंदी करें और शरीयत को समझे, उसके क़वानीन को समझे, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे मसाइल जो शरई मसाइल कहे जाते हैं या तलाक और खुला के मसाइल कहे जाते हैं या हुकूकुल इबाद के मसाइल कहे जाते हैं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। आपने जो शरई फैसला बहुत कायम किया है, मुश्ताक साहब, मेरी आपसे बहुत दबंग गुजारिश है कि इन तमाम मुफ्तियान की सरपरस्ती में, उलमा और मशाइखिन की सरपरस्ती में आप सबसे पहले ऐसे इजलास मुनक्किद करें जिसमें बतौर खास नौजवानों को दीन और शरीयत से वाकिफ कराएं। इससे बहुत बड़ा